السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ آپ نے دیکھا میں نے کل کہا تھا کہ نبیہہ بھلی چنگی ہو کر کل یہاں پہ موجود ہوں گی۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے کل نبیہہ کو بہت مس کیا ہے ان کو یہ خوشخبری میرے خیال میں مل گئی اپنے اسکرین کے ذریعے کہ نبیہہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور کرونا کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ مجھے کل 2-3 لوگوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سارا دن بیٹھ کے کرونا کرتے ہیں، آپ کی میزبان اور آپ کی دوست کو کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے چاہا تو سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہلکی سی طبیعت کسی وقت خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب ہم کرونا کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی غلط ذکر نہیں کرتے کیونکہ جتنی احتیاط کی جائے اتنی کم ہے۔ نبیہہ اس دفعہ حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی چاند رات بازار نہیں ہوں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے بہت ہی یہ زبردست انیشیٹو ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو، کیونکہ یوزلی میرے خیال سے اگر بازاروں میں رش نہ بھی ہو تو ہم ذرا ایسی قوم ہے جو ہر وقت بڑے ایکسائٹڈ رہتے ہیں اور ہر دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو چاند رات پہ ویسے بھی لوگ اگر بازاروں کا رخ نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اور کا رخ ضرور کر لیں گے۔ تو یہ جب تک ذمہ داری کا احساس ہم خود سے اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، گورنمنٹ ڈاکٹر صاحب جو مرضی کر دے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس دفعہ میرے خیال میں یہ عوام تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بہت دیر سے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سب آپ کی بہتری کے لیے۔ کل مجھے نبیہہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مزہ آئے گا چاند رات پہ، وہ پوری رات باہر رہنا، کھانا پینا، رمضان کے بعد پوری رات ریلیکس کرنا، عورتوں کا چوڑیاں چڑھانا، جوڑے لینا، جوتے لینا، مہندی لگوانا، وہ سب نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں؟ پہلے میں ان کا جواب دے دوں، میں نے کہا کہ میاں یہ سب زندگی کی بہاریں ہیں، یہ صحت کی بہاریں ہیں، ٹھیک رہو گے، زندہ رہو گے تو بہت ساری چاند راتیں آئیں گی۔ اگر ایک چاند رات پہ قربانی کر دیں تو کیا حرج ہے؟ جی آپ فرما رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا دل کیا اس بات پہ مانتا ہے کہ خواتین کے پاس گھر میں اگر چلیں نہیں تو پرانی چوڑیاں موجود نہیں ہوں گی یا مہندی گھر میں نہیں لگ سکتی؟ ایسا ممکن ہے؟ سارے کام گھر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چوڑیاں نہ بھی چڑھائیں تو کیا عید نہیں ہوتی؟ کھجور نہ بھی کھائیں تو کیا روزہ افطار نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے چونچلے ہیں سارے جو ہم نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں۔ خدا کی قسم اپنے سارے بچوں کی خاطر، اپنے محلے کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، اگر آپ صرف گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر میں رہ کر ایک محفوظ عید گزاریں گے تو آپ یقین کیجئے اپنے پہ بھی احسان کریں گے اور دوسروں پہ بھی احسان کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ احتیاط کا دامن تھام لیں۔ اچھا نبیہہ آج کا دن بہت خاص دن ہے، آج رمضان کی 17 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کا ذکر آتے ہی ذہن میں دو بڑے ایونٹس کا ذکر آتا ہے۔ آپ فرمائیے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک تو ہم سب کی بہت اما عائشہ حضرت صدیق اکبر کی چہیتی، میرے آقا کی لاڈلی زوجہ اما عائشہ کا آج یوم وصال ہے، اور بہت ساری آج میں چاہوں گی کہ ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا تو ہم اس میں تذکرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر بے شک ایک مارکا یا ایک معجزہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس سے کم نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے غزوہ بدر کا آج یوم بدر ہے، جسے یوم فرقان بھی کہا گیا، یعنی کہ جس نے فرق کر دیا حق اور باطل کے اندر، اور یہ وہ مارکا اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کا سپہ سالار اور کوئی نہیں، محبوب کبریا اور میرے اور آپ کے آقا خود تھے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر جذبہ ایمانی کی حدت موجود ہے تو آپ جیسے بھی بے سر و سامان ہیں، کتنے ہی قلیل کیوں نہیں ہے تعداد میں، فتح و نصرت آپ کی قسمت میں لکھی جائے گی۔ اور جو ذکر کیا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے نبیہہ نے ابھی، میرا تو دل کرتا ہے کہ آج کوئی اور ذکر نہ ہو، صرف اور صرف بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سیدہ کا ذکر ہو کہ جو محبوب خدا کی محبوبہ ہیں، ان کی رفیقہ ہیں، اور یقیناً ہم چاہیں گے جن کے فضائل قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ ہمیں دکھتے ہیں، جو گواہی قرآن کریم میں بھی ان کی پاک دامنی کی جو ہے گواہی دے گی، اس پر آج ضرور ڈاکٹر صاحب ہم چرچا کریں گے، بالکل تذکرہ کریں گے۔ اچھا ہمارے ٹرانسمیشن میں کال کا ہے، ایک نمبر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر کے ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ آپ ناظرین تو ہیں لیکن آج آپ حاضرین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں جی، کال اگر ہم نے ذکر کیا اور کال ہمیں آ بھی گئی ہے، فاطمہ نے ہمیں کال کیا۔ جی السلام علیکم فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ ٹرانسمیشن دیکھتی ہیں آپ روزانہ ہماری؟ اللہ کا شکر جی، بہت بہترین آپ کی انفارمیٹو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور بہت بہترین طریقے سے آپ لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں ایس او پیز کے حوالے سے، اور جس طرح سے آج کل کووڈ جو ہے بری طرح پھیل رہا ہے، تو آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ اس دفعہ ہم جو ہے عید کی شاپنگ سے گریز کریں اور بالکل بھی اپنے گھروں تک محدود رہیں اور باہر نہ نکلیں، ایسے بھی اس کو فالو کریں۔ آپ نے کوئی کی ہے عید کی تیاری یا بازاروں کا رخ بھی تو نہیں کرنی ہے؟ کیا کر رہی ہیں احتیاط؟ بالکل ابھی تو ہم گھروں میں جو ہے محفوظ ہیں اور
बच्चों को भी जो है हमने घरों तक महदूद कर रखा है और बिल्कुल हम जो है SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और अभी तक जो है अच्छा फातिमा ये बताइएगा, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, तो अगर आप नई चूड़ियां नहीं खरीदेंगी या बाजार का रुख नहीं करेंगी तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? जितनी बहनें आपको इस वक्त देख रही हैं, आप उनको कैसे मशवरा देंगी कि फिर वो क्या करें? पुराने कपड़ों को यूज कर लें या किस तरीके से अपनी ईद अच्छी भी गुजार सकते हैं घर पे बाजार जाए बगैर? हम हमेशा से जो है ईद को बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। चांद रात जो है ईद से ज्यादा एक्साइटमेंट हमें होती है चांद रात की, और उसको हम अच्छे तरीके से मतलब मनाते हैं। लेकिन अगर इस दफा हम नहीं शॉपिंग करेंगे या चूड़ियां नहीं खरीदेंगे, नए जोड़े नहीं खरीदेंगे, तो हम हमारे पास उसका एक अल्टरनेट भी है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें, हम मार्केट्स का विजिट ना करें, हम बाजारों में ना जाएं, उसको ऑनलाइन हम करें। तो ये एक आई थिंक बेहतर हो सकता है कि इससे जो है हम भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। फातिमा, जो बातें कर रही हो उस पे कारबंद रहना, उस पे अमल भी करना, बेइंतहा मेहरबानी। आपने हमारी ट्रांसमिशन में फोन किया। नबिया, आपको अंदाजा है, मैं नबिया को हमेशा ये समझाता हूँ कि चूंकि नबिया एक घरेलू खातून है और एक वालिदा और एक बेगम है, तो घर जाके अपनी जिम्मेदारियों के अंदर लग जाती है। मैं एक आवारा आदमी हूँ, जाके दुनिया जहान के साथ बरसरे पैकार होता हूँ। मैं हैरान हूँ ख्वातीन हज़रात कि आप कितनी दिलचस्पी और कितने शौक के साथ हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मुझे नहीं अंदाजा था कि हम आपके इतने करीब आ जाएंगे और आप हमारे इतने करीब होंगे। इसके लिए मैं और नबिया और हमारी पूरी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। और सबसे पहले हम अपने अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी इस अदना सी काविश को किसी हद तक कबूलियत का शर्फ बख्शा। ख्वातीन हुज़रात, हमारा सिलसिला आज पूरी ट्रांसमिशन में चलता रहेगा। मैंने दो मौज़ूआत आपके सामने रखे हैं, एक वाक़या है और एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उन दोनों का जिक्र रहेगा और दोनों का महवर दरअसल कौन है? मेरे और आपके आका और सरकार दो आलम। ये सारी निस्बतें उसी बरकत से हैं कि जो उस हस्ती के साथ वाक़यात को हैं, सहाबियात को हैं, अज़वाज को हैं, सहाबियों को हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। मगर आपको पता है कि हमारे साथ रोज़ हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ होती हैं, सैयदा हुमा किरमानी। मैं पूरा नाम इसलिए लेता हूं कि बीबी सैयद होने का हर वक्त तज़किरा करना चाहिए, और शायद तुम्हारी सादात की वजह से, तुम्हारी सयादत की वजह से आपके पकाए हुए खाने में बरकत और लज्जत है। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो चीज़ चाहत से बनाई जाए, दिल से बनाई जाए, थोड़ी मेहनत की जाए, तो क्यों कैसे मुमकिन है कि वो चीज़ अच्छी ना बने और सबको पसंद ना आए। और मकसद यही होता है इतनी मेहनत करने का कि जो चीज़ बनाए अफ्तार के वक्त जो रोज़ेदार हैं सब बैठ के खाएं, और दस्तरखान अपना आजकल के दिनों में जितना वसी कर सकते हैं करना चाहिए अपनी इस्तात के मुताबिक जो है। मेरे ख्याल से यहाँ आपकी बात रोकने लगा हूँ। हमारी शेफ हैं, सबके लिए खाना पकाती हैं, दस्तरखान वसी करने की बात है। मुझे ये एतराफ़ करना है आपके सामने ऑन कैमरा, मेरे लिए और नबिया के लिए और हमारे बच्चों के लिए रोज़ाना एक डब्बे में अलहदा से कुछ चीज बना के लाती हैं, जो ये कहती हैं कि घर जाके तल के खाइएगा। और बिल्कुल उससे सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि हमारे जो घर वाले हैं वो भी उसके मजे चखते हैं घर में अफ्तारी के दौरान। और हुमा, आपने चीज बॉल्स गिफ्ट किए थे, बहुत खूब, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन नबिया लाजमी नहीं है कि सबने आप दोनों को ही गिफ्ट करना है, और भी बहुत से लोग हैं जिनको गिफ्ट किया जा सकता है। मगर एतराफ सिर्फ हमें करने की जरूरत है। ये देख लो, बाकी नाकदरों को जो गिफ्ट करती हो क्या फायदा? कभी किसी ने ऑन कैमरा कहा है? कोई मुझे बताइए जरा, ये कोई बात है? भला डॉक्टर साहब कॉलर है सबीन ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम सबीन। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी नबीला, ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबीन। प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ट्रांसमिशन है आप लोगों की। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे इसमें। आमीन। और मेरे तरफ से एक मैसेज था कि जैसे कि आजकल आपको पता है कोविड का जो सिलसिला चल रहा है, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं, मतलब बिजनेस डाउन हो गए हैं, कुछ लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो इसमें मेरा ये मैसेज है कि प्लीज जो लोग साहिब हैसियत हैं वो जरूर चैरिटी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ख्याल रखें। तो ये है कि इसमें मतलब बहुत जरूरी है कि इस टाइम हम जो हमारे साथी जिनको हमारी मदद की जरूरत है हम उनकी मदद करें, खुल दिल खोल के ना। बहुत अच्छी बात है सबीन। सारी बच्चियां जो फोन कर रही हैं वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो जो दावे यहाँ किए जा रहे हैं, एहतियात की जो बातें हैं, उन सब पे अमल दरामद भी हो। और मुझे लगता है कि होगा, अपनी खातिर भी और दूसरों की खातिर भी। ख्वातीन हुज़रात, हमारे साथ रहिए। मेरे ख्याल में से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे किसी खास मेहमान से। वो कौन होंगे जानेंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा।
आ गए हैं कि क्या कर रहे हैं? वेलकम बैक डॉक्टर साहब, वी आर भाई देखिए, लाइव। आप मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, इतना लंबा वक्फा पड़ गया है कि उसके बाद आप यकीन कीजिए मुझे तो भूल ही गया था कि हम लाइव हैं या नहीं है। अभी घर में देखिए बच्चे कह रहे हैं पकड़े गए एंकर्स। ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ लाइव बड़े- की खूबसूरती होती है। खूबसूरती होती या नहीं होती भैया, किस्सा सिर्फ ये है मैं तो जमहूरियत की खूबसूरती देख रहा था जिससे पहले आपको दिखाई जा रही थी। खुदा की कसम, वो सूबा और वो शहर जो पिछले 30 साल से पिस रहा है, उसने अपनी आदत और वतीरा नहीं बदला। खुदा ही इस मुल्क की हालत आमीन, बदलेगा और इंशाअल्लाह। खुदा ही इस मुल्क की आवाम को अक्ल और शऊर देगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें गिला किसी और से नहीं, अपने आप से होना चाहिए कि हम जहां वोट डालते हैं उसमें से सांप ही निकलेगा और क्या निकलेगा। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, बाहर तौर अब दोबारा आपके सामने हैं और हमने जाते वक्त कहा था अगर आपको याद हो, ये 2 दिन पहले की बात है कि हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे अगले सेगमेंट में। तो मेहमान हमारे साथ आपसे बात करने और आपको कुछ सुनने सुनाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे आज के खसूसी मेहमान 2 हैं। एक तो सबसे पहले मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और मेरे बड़े पसंदीदा गुलकार यहाँ बैठे हैं, जनाब अली अब्बास साहब। थैंक और यू अली अब्बास, तुम्हारा आना हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसकी वजह आपको भी बताता हूँ। और फिर हमारी बहुत प्यारी बच्ची है जो खास तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल हुई, इसका नाम है शबाना भट्ट। मैं पहले रबिया आपको थोड़ा सा अली अब्बास और अपने ताल्लुक के बारे में पस मंजर बता दूं। हर एक चीज की तारीख बताता हूं, तो अली अब्बास और मेरी भी एक तारीख है। मेरा ताल्लुक एक पंजाब के छोटे से गांव से है जिसका नाम है किला दीदार सिंह, लेकिन मेरी ननिहाल लायलपुर की रहने वाली है और मेरी पैदाइश खुद लायलपुर में हुई। जब मेरी पैदाइश लायलपुर में हुई तो मैंने शुरू में जो चीज़ें सुनी और देखी उनका इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी मेरे पे रहा। उस वक्त क्या उम्दा आवाज़ें लायलपुर और उसके मुज़ाफ़ात में गूंज रही थी। सतियाना एक जगह थी, लसूड़ी शाह एक इलाका था, चिन्योट एक पूरा जगह। ऐसे लगता था कि हसीन तरीन आवाज़ें उसमें से आती हैं। और अली, मैं ये इतराफ़ करने के लिए तैयार हूँ कि जो उस वक्त एक नसीहत आपके बुजुर्गों ने मुझे की, मैंने अपने पल्ले से बांध ली। वो नसीहत आपके नाना और उनके दोस्त जनाब मोहम्मद सादिक और मोहम्मद इकबाल ने की थी। याद है नसीहत क्या थी? बहुता प्यार ना करी नहीं तो रुल जावेगा। सर देख लो, मैं कदी बहुता कीता ही नहीं, कदी रुलिया नहीं, समझ आई? हाँ, रोलिया बड़े आनू है, वो करना चाहिए बिल्कुल। और अली, ऑन अ मोर सीरियस नोट, मुझे याद है कि बहुत बचपन में आपके मामू, जब आपके ससुर भी हैं जनाब हसन सादिक साहब, उनका एक मरसिया था जिसका जिक्र मैं किसी वक्त और करूंगा, सिर्फ उसके लफ्ज मुझे याद हैं। टुर चलनी या शाम नु बाबा मैं वीर को हाके। बीबी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की जबान से ये मरसिया कहा गया था और मुझे अभी तक याद है कि जब भी ये सुनता हूँ, कुछ वो वाकया, कुछ बीबी से अकीदत, कुछ वो लम्हे और कुछ अपना बचपन, सब मिलके यकीन कीजिए कि आंखों का जैसा कहता है कि एक बह निकलती हैं, वो हाल होता है। और अगर आपकी मुलाकात हो अपने मामू से तो कहिएगा, उनके लिए सदका जारिया है कि कितने लोग ये चीज सुन के अपने आप को बेकाबू महसूस करते हैं। और थोड़ा सा तारुफ मेरे ख्याल में शबाना का आप करवाइए, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम में सुना आती रहती है। शबाना आती है और शबाना, इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है। शबाना मेरी बहुत ही पसंदीदा और बहुत प्यारा कलाम पढ़ती हैं। और शबाना ने आई स्टिल रिमेंबर जो एक बार माँ का कलाम पढ़ा था और हम तमाम लोग आप दीदा हो गए थे। तो शबाना, आज आपसे कुछ फरमाइश करेंगे हम आगे चल के। अच्छा, वैसे शबाना से ये पूछ लीजिए, आपके प्रोग्राम में तो आती रही है, शबाना डिस्कवरी किसकी है? सबसे पहले टेलीविजन पे जिस प्रोग्राम में शबाना आई थी, मौसीकी के प्रोग्राम में, वो किसका प्रोग्राम था? सर देखिए, कोई तो फायदा हुआ ना मुझे प्रोग्राम करने का कि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे थे, सीख रहे थे, उनको प्लेटफॉर्म मिला। और मगर बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की दे। मगर अली, अफसोस सिर्फ ये है कि अब कोई टेलीविजन चैनल ऐसा नहीं है जो मौसीकी की तरवीज और तरक्की के लिए काम करे। आपका क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो मुझे आप में जैसे माशाल्लाह भरपूर हैं हर चीज़ों में, अल्लाह आपके जो ये तौफीकात और मज़ीद आपने करे। और जैसा मुझे लगता है कि ये टाइज हमारी ऐसी भी मिलती हैं कि आपका वाकई ताल्लुक फैसलाबाद से लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई मेरा एक दोस्त है, वो कहता है फैसलाबाद हर चीज थोक में मिलती है, वहाँ आर्टिस्ट भी थोक में मिलते हैं। कितने आला मिलते हैं। आपकी मिसाल वो मतलब एक है, जो आवाजें फैसलाबाद ने पैदा की ना, लोग जिक्र जरा कम करते हैं। यहाँ कसूर का बहुत जिक्र होता है। क्या बात है कसूर की, क्या बात है कसूर की। जो बच्चे गुलकार घराने में नहीं भी पैदा होते वो भी सुर में है, मगर फैसलाबाद भी एक गजब की जगह है, यकीन कीजिए। तो जो आपका सवाल था वो में हर जो कौमें होती हैं, हर मुल्क होते हैं, वो अपने कल्चर पे बेस करते हैं। आई थिंक सो हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये वाकई, ये अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से हम भी देख रहे हैं कि जो म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हैं या म्यूज़िक की कुछ
या कोई म्यूज़िकल या स्पेशली कोई इंस्ट्रूमेंटल वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो वैसे भी सोशल मीडिया ने भी अपना इसमें उसका रोल भी है, तो लोगों ने इंडिविजुअली चीज़ें कर ली हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे नेशनल चैनल्स होते हैं या बहुत ऐसे उनकी जिम्मेदारी है कि अपने उन चैनल उन जो वसेब को अपने कल्चर को जिंदा रखें। एब्सोल्युटली। थोड़ी सी बात मैं आपको अली अब्बास की बताऊं, मैं इन लोगों से इसलिए भी वाकिफ ज़्यादा हूं कि मुझे इनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और आमतौर पर लोग जो चीज़ें नहीं जानते, मैं आपको ये बताऊं कि जो इनके नाना थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे नेक आदमी से की जिनका ताल्लुक मौसीकी से नहीं था। फिर अल्लाह ने आगे से उनको 2 होनहार बेटे दिए, 4 दिए, लेकिन 2 होनहार हमारी नजर में वही है जो सुर में है। राजा वो बात कर रहे हैं, कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, मैं कहता हूँ 5-6 हो, बीच में 2 ही अच्छे होते हैं। तेरे वर्गा से एक भी हुए तो काफी है माशाल्लाह। मगर मैं किस तरह भूलूं कि मेरी जान है असद अब्बास में, खुदा उसको जिंदगी और सेहत दे, कितना बड़ा फनकार है मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा कि 2 होनहार बच्चे दिए, बाकी भी होंगे, गांधे नहीं थे साढ़े किस काम दे, हाँ होनहार अपनी जगह पे होन। अच्छा मैं एक सर्च करूं, क्योंकि वालिद इनके गाते नहीं थे, उन्होंने इनकी मौसीकी की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप ये जानते हैं कि हमारा इतना बड़ा फनकार, he started his life by painting large boards। याद है आपको? हनबिया बताइए, आपको ये पता था? नहीं मुझे ये बात पूरी तुहानू पता है एनसाइक्लोपीडिया है नहीं तू हमना कर, मैं वो चीज़ां नहीं छेड़नियां जड़ियां नहीं छेड़न वालियां। मगर क्या हिम्मत है कि फिर वो जो खानदानी सलाहियतों का एक समुंदर था वो इनको सही डायरेक्शन में बहा के ले गया। और मेरे ख्याल में इनकी तालीम में और इनकी तरबियत में बहुत बड़ा हाथ इनके मामू का है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया जनाब हसन सादिक का। मैंने सर लगता है वो बड़े सख्त उस्ताद। डॉक्टर साहब फरमाइश आ रही है पीछे से, कलाम की भी बड़ी पुरजोर फरमाइश आ रही है, तो क्या ख्याल है जरा? आज पता है मसला क्या है, एक फरमाइश आती है जो कि नबिया के कान में आती है, मुझे नहीं सुनाई देती, एक मेरे कान में आती है, नबिया को नहीं सुनाई देती। तो अगर फरमाइश वहां से आ गई है तो मेरे ख्याल में बातें सब अपनी जगह, लेकिन अगर आपका कलाम शामिल हो जाए। मैं बिल्कुल एक नातिया कलाम नात पेश करता हूँ। वेलकम बैक जनाब, और अब हमारा प्रोग्राम बढ़ रहा है सेगमेंट क्विज मुकाबला की जानिब, और 2 राउंड्स होंगे। और पहला राउंड होगा जनाब, बहुत ही आसान सवाल पूछे जाएंगे आप तमाम लोगों से, सोच समझ के आपने जवाब देना है, ठीक है जी? जो कंटेस्टेंट आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांसमिशन में उनका तारुफ करवाते चलो। सबसे पहले सजावल, जिनका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, उसके बाद है जी सिबगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, चमन पंजाब यूनिवर्सिटी से। जनाब पहला सवाल सजावल आपके लिए, बताइएगा हजरत आयशा सिद्दीका का ताल्लुक किस कबीले से था? कुरैश से। करेक्ट। ये बताइएगा पाकिस्तान की खूबसूरत वादी कैलाश किस शहर में है? चित्राल में। करेक्ट। ये बताइएगा दुनिया का कौन सा मुल्क सतह समंदर से कुछ नीचे वाक़ है? नेदरलैंड। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही मुअज़्ज़मा खातून है बीबी हजरत मरियम, उनकी वालिदा का नाम क्या था? पास। बेटा मैंने ये सवाल इनसे इसलिए पूछा था कि सजावल ने मुझे आके कहा कि मुझसे इस्लामी तारीख की बातें पूछें, अलबत्ता मेरा मजहब ईसाई है और मेरे दिल में ईसाइयों के लिए बेइंतहा मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। मेरी तालीम और मेरी तरबियत के अंदर सेंट एंथनीज हाई स्कूल के तमाम की तमाम फैकल्टी शामिल है जो कि सब ईसाई थे, मगर मुझे बेहतर इंसान बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अब मैं बन ना सका तो ये और बात है, मगर उनकी कोशिश में कमी नहीं थी। हजरत मरियम की वालिदा का नाम था सेंट एन हन्ना बीबी। अब याद रखिएगा ये बात, या आपके ख्याल में कुछ और होना चाहिए ना? अगली बात मुझे बताइए, ये बताइए कि किस नबी ने पंघूड़े के अंदर अपनी माँ की इस्मत की गवाही और अपनी नबूवत का ऐलान किया था? हजरत ईसा। वेरी गुड, वाकई यार आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल। ये फरमाइए कि हजरत ईसा की पैदाइश किस मुकद्दस शहर में हुई? बैतुल मक़दस में। वेरी गुड। उसका दूसरा नाम क्या है? बैतलहम। और क्या नाम, और क्या नाम है उसका? यरूशलेम। बहुत बैतुल लहम, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल कुद्स और यरूशलेम। बहुत उम्दा। अगला सवाल आपके लिए पहला सवाल ये है, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। ये बताइएगा कि पाकिस्तान 1994 में बैक वक्त 4 खेलों का चैंपियन रह चुका है। कौन कौन से वो खेल हैं? स्क्वैश, कबड्डी और क्रिकेट। कबड्डी नहीं, हॉकी इसमें करेक्ट है। जनूबी एशिया की पहली मस्जिद कहाँ तामीर की गई? जनूबी एशिया की पहली मस्जिद जो है वो पास। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके सवाल। फरमाइए, एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन है जिनका नाम है हाशिम खान, उनका ताल्लुक किस खेल से है?
बेटा स्क्वॉश के साथ अभी आपने जिक्र किया स्क्वॉश की जगह हॉकी की आपने बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हैं, तो उसके बारे में पूछें। ये फरमाइए, पाकिस्तान का एक शहर, इसका नाम है तोरखम, ये किन दो मुमालिक की सरहद के पास वाक़ है? पाकिस्तान के साथ कौन सा नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे तोरखम शहर मौजूद है? अफगानिस्तान। वेरी गुड बेटा, कभी गई है वहाँ पे कि नहीं? अच्छा चलो, है सही, अगर तुम गई नहीं तो फिर भी फिक्र ना कर, है सही अपनी जगह पे। अच्छा बेटा ये बताइए, गवादर हमारी एक डेवलपिंग बहुत बड़ी आपको पता है कि पोर्ट है, गवादर का मतलब क्या है? बेटा पता कर लो, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में गवादर और सी पैक मंसूबा बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। गवादर का मतलब है हवा का दर और गवा कहते हैं हवा को। जी अच्छा जी, अगला सवाल हमारा है चमन से। चमन ये बताइएगा कि ज़कात के लफ्जी मानी क्या है? ये बताइएगा कि स्केटिंग का पहला क्लब कब और कहां कायम हुआ? इंग्लिस्तान में हुआ। सही जवाब। ये बताएगा यूनिसेफ का मुखफ़िफ क्या है, या किस चीज का मुखफ़िफ है? यूनाइटेड नेशन। यूनिसेफ का पूरा मतलब बताइए ना। पास। ठीक है डॉक्टर साहब, अगले सवाल आपके। बेटा आपका नाम चमन है, आपका हम नाम चमन शहर किस पाकिस्तान के सूबे में है? पाकिस्तान के किस सूबे में चमन नामी शहर है? केपीके में। कुर्बान जाऊं, अपने नाम की तो लाज रखनी थी, बलोचिस्तान के अंदर है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, ये फरमाइए, एक बहुत मशहूर खानदान गुलामा के बादशाह जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका मजार कहाँ पे है? बरसगीर के किस शहर में उनका मजार है? दिल्ली में। बेटा जी कुछ चीजें लाहौर के हिस्से में आई हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक का मजार भी लाहौर के अंदर मौजूद है, सब चीजें दिल्ली में नहीं है। ये फरमाइए, दिल्ली के आखिरी मुगल फरमा रवा बहादुर शाह जफर का मजार किस शहर में है? पास। बेटा रंगून में है, याद रखिएगा। बजर राउंड की जानिब बढ़े। बजर राउंड के जानिब बढ़ते हैं, और जो आप में से पहले सही जवाब देगा उसको नंबर बजर बजाने के बाद। गलत जवाब देने पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो सकती है। तो पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ये बताएगा स्पेनिश किस मुल्क की कौमी जबान है? स्पेन। स्पेनिश जी। स्पेनिश बोला है, स्पेन की। अगला सवाल आपके लिए, बताइएगा अमेरिका के पहले सदर का क्या नाम था? आपने दबाया? आता नहीं। ठीक है, अगले सवाल के जानिब चलते हैं। ये बताइए, आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर सबसे बड़ा है? डॉक्टर साहब अगर कुछ आसान सवाल हम शामिल कर सकें इनके लिए, अगर आप अगले सवाल पूछ रहे थे। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये ऐसे नहीं आपको खाली हाथ जाएंगे, आपको रूह अफ़ज़ा का भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और ईवा कुकिंग ऑयल की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। इसलिए 100% नेचुरल है, तो ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ नियो की जानिब से भी एक तोहफा, एक इनाम आपके साथ जाने वाला है। तो सोच समझकर बजर बजाइएगा और डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब। यही वो राउंड है वो जो कहते हैं ना कि इलेक्शन के अंदर आखिरी 50 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने वाला है, जिस पर रिजल्ट बदल जाता है और गलत लोग आगे आ जाते हैं बाहर। तो अब आपने जरा होशमंदी से कि सही लड़का सही लड़की यहाँ से जीत के जाए। और मैं सवाल बहुत सादे करने लगा क्योंकि मुझे लगा कि आज तैयारी बहुत ही कम है। ठीक है जी, चलिए बड़े आराम से आपसे आपके मुल्क के मुतालिक पूछते हैं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान के शहरों में से सबसे पहले एयरपोर्ट किस शहर में बना? कराची में। वेरी गुड, कराची में बना, बिल्कुल। अगला मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के किस शहर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वॉल्टन एरोड्रोम? पाकिस्तान के किस शहर का एक ऐसा एयरपोर्ट भी इसका नाम है वॉल्टन एरोड्रोम? लाहौर। वेरी गुड, लाहौर, बिल्कुल। नबीहा, ये सवाल मैंने कोई उमैर खालिद साहब है उनकी राय से पूछा। पहुंच जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं और बजर बजाएं, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या करना है हमने। ठीक है जी, ये फरमाइए ये कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर सदर थे और आर्मी चीफ थे, सदर अयूब खान, उनका ताल्लुक किस गांव से था? उनका ताल्लुक पठान थे तो केपीके से था, लेकिन किस गांव के साथ? किसी को नहीं पता। उनके गांव का नाम था रेहाना। ये बताइए कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का ताल्लुक किस इलाके से था, किस शहर से था? जी। सिंध गढ़ी खुदा बख्श। सिंध में गढ़ी खुदा बख्श है। गढ़ी खुदा बख्श तो लड़काना। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि सिंध से था। गढ़ी खुदा बख्श में उनका मजार है, उनका ताल्लुक नहीं था। जी हमें बताइए कि क्या बना?
सजावल के आज के हमारे जो विनर हैं वो सजावल हैं। जी, बिल्कुल सजावल है आप इधर हमारे। तशरीफ लाइए और वसूल पाइए सबसे पहले रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर नबीहा से, और उसके बाद ईवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ईवा की कुकिंग ऑयल की रेंज है वो बेइंतहा हेल्दी है, इसलिए कि ईवा इज वर्चुअली ट्रांस फैटी एसिड फ्री, जिसकी वजह से इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और खून पतला रहता है। और जायका तो ईवा में तलने के बाद आज इनको पता चलेगा सजावल को कि कैसे पकौड़े निकलते हैं उसमें से, और कल इनसे पूछेंगे कि पकौड़े कैसे रहे। एनीवे डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ब्रेक का जो है वो इशारा किया जा रहा है, ब्रेक के जाने बढ़ते हैं और उसके बाद प्रोग्राम इशारा तो नहीं किया जा रहा, दबाव डाला जा रहा है। तो जनाब छोटी सी ब्रेक है, जो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।